নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, দেশে যাই হয়ে যাক না কেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি তার নিজের পার্টির জন্যই ভোট চাইতে যাবেন এবং সেটা একদম স্বতঃসিদ্ধ কথা। বিজেপির হয়ে ভোট চাওয়ার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী কখনোই কার্পণ্য করবেন না। সে দেশে যে পরিস্থিতি থাক না কেন, এটা আরো একবার প্রমাণিত। এবং কপিল সিব্বল, রাজ্যসভার সাংসদ এবং সুপ্রিম কোর্টের বরিষ্ঠ লয়ার, তিনি এই প্রশ্ন তুলেছেন প্রেস কনফারেন্স করে যে 24 ঘন্টা আগে নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী সমস্ত বিভিন্ন রাজ্যের যারা মুখ্যমন্ত্রী, 5টা রাজ্যে যেখানে ভোট রয়েছে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীদের বাদ দিয়ে তিনি বৈঠক করলেন এবং তিনি বললেন টিম ইন্ডিয়ার এখন আমাদের একত্রিত হওয়া উচিত। সমস্ত বিরোধী দলনেতা, সমস্ত বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে আমরা বলছি একত্রিত হওয়ার সময় এখন কোভিড মহামারীর সময়। কিন্তু তার 24 ঘন্টার মধ্যে তিনি কি করলেন? কেরালামে চলে গেলেন। কেরালামে গিয়ে তিনি কি একদম ধুয়ে দিলেন এবং নিজের পার্টির হয়ে ভোট চাইতে শুরু করলেন। যেখানে দেশের এই মুহূর্তে অবস্থা, এলপিজি ক্রাইসিস এখনো মেটেনি, দেশে আর মাত্র 5 দিনের তেল বাকি আছে রিজার্ভ করা, এবং তার সঙ্গে একটার পর একটা প্যানিক ক্রিয়েট হচ্ছে প্রত্যেকটা পেট্রোল পাম্পে। আমরা দেখতে পাচ্ছি গুজরাট থেকে, মধ্যপ্রদেশ থেকে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রচুর মানুষ এখনো পর্যন্ত বাইক নিয়ে আসছেন, হাতে ড্রাম নিয়ে আসছেন, যে যা পাচ্ছেন ভরে নিচ্ছেন তেল। এই যে প্যানিক ক্রিয়েট হচ্ছে, সেটাকে আটকানোর মূল চেষ্টা এখন করা উচিত নাকি কেরালামে গিয়ে এলডিএফ এবং ইউডিএফ দুটো জোটকেই একদম ধুয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদী এবং তিনি বললেন তাদের মাঝখানে সেটিং রয়েছে, তাই জন্য একবার এদের সরকার থাকে একবার ওদের সরকার থাকে, আগে আমাদের সরকার তৈরি করুন, আমরা কোনো সেটিং এর মধ্যে নেই। এইভাবে সম্পূর্ণ একদম কেরালাতে গিয়ে নিজের ভোটের জন্য নিজের পার্টি হয়ে তিনি ভোট চাইলেন। এবং আপনাদের মনে থাকবে নিশ্চয়ই 2021 সালে যখন করোনা সেকেন্ড ওয়েভটা চলছে, তখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসে দিদি ও দিদি এই ধরনের স্লোগানিং করেছিলেন। একদম কোনো ধরনের কোভিড প্রোটোকল তার সভায় তখন মানা হয়নি, সেটা নিয়েও বিভিন্ন ধরনের চর্চা হয়েছিল এবং এখনো একই ধরনের একটা ছবি কিন্তু ধরা পড়লো। সেটা নিয়ে কপিল সিব্বল প্রশ্ন তুলেছেন, আপনারা দেখুন সেই প্রশ্ন এবং আসছি তারপর এই নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা যে আরো কি প্রশ্ন তুলেছেন কপিল সিব্বল। मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बाकी देश अपने स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स कई दिनों के लिए रिजर्व कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं किया? इसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा है। और अगर बाकी देश दूरदृष्टि के साथ सोच सकते हैं कि हमें अगर ऐसा हुआ तो हमें ये भुगतना पड़ेगा, तो आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप केवल इलेक्शन जीतने के लिए आगे की सोचते हैं, देश कोई प्राथमिकता नहीं रखता। और ये बड़ा भाषण दे रहे हैं आप सब चीफ मिनिस्टर को बुला के, वी मस्ट वर्क एज टीम इंडिया। टीम इंडिया आपको याद आ गया जब देश संकट में, हम तो आपके साथ रहेंगे। और जब देश संकट में नहीं होता तो कहां है वो टीम इंडिया? पार्लियामेंट में टीम इंडिया होती है, पार्लियामेंट के बाहर टीम इंडिया होती है। किसी की बात आप सुनते हो, विपक्ष की बात सुनते हो? ये बड़ी दुख की बात है। और ऐसे ही कोरोना में हुआ था, आपको याद होगा कैसे महिलाएं, पुरुष, फैमिलीज 100 किलोमीटर चल के, पैदल चल के, जिनको जगह नहीं मिलती थी रेलवेज में, क्या बुरी हालत, क्योंकि आपने तभी भी नहीं सोचा, क्योंकि आपको लत तो एक ही है किसी तरीके से। सीईसी आपका साथ है, बाकी लोग आपके साथ में, इस तरीके से इलेक्शन जीतो, 60 लाख वोट कटवा दो, ये करो वो करो। আপনারা শুনলেন কপিল সিব্বলের এই বক্তব্য এবং তার সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তুলেছেন যে নরেন্দ্র মোদী, যে আপনি বলুন আপনার আসল বন্ধুটা কে? আপনার আসল বন্ধু কি ডোনাল্ড ট্রাম্প? আপনার আসল বন্ধু কি নেতানিয়াহু? এবং তাদের জন্য ভারতবর্ষের আজকে এই অবস্থা হয়েছে, তো আপনি তাদেরকে ফোন করে বলতে পারছেন না যে ভারতবর্ষে এই ধরনের তেলের সমস্যা হয়েছে, এই ধরনের জ্বালানি সমস্যা হয়েছে, আপনি আমার বন্ধু হিসেবে আমাকে সাহায্য করুন? এটা আপনি বলতে পারছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্পকে? ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তো আমরা বারংবার বলতে শুনেছি যে মোদি ইজ মাই ফ্রেন্ড। তাহলে সেই ক্ষেত্রে একজন বন্ধু যখন সমস্যায় পড়েছেন আরেকজন বন্ধুর কারণেই, তখন সেই বন্ধুকে তিনি বলতে পারছেন না যে এই সমস্যা থেকে আমি কিভাবে বের করব? এই প্রশ্ন একদম সরাসরি তুলেছেন কপিল সিব্বল। আপনারা শুনুন এবং অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ। Second question I asked the Prime Minister, who are your best friends?
America and Israel. We get a lot of support from them in terms of technology, in terms of defense equipment, in terms of water technology. Right? So they are your best friends. And if they are your best friends, then how is it that your best friends are hurting you the most? सबसे गहरे संबंध आपके दो देशों के साथ हैं, वो है इजराइल और अमेरिका। और ये ताज्जुब की बात है कि उन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हमको हो रहा है। मतलब कि आपसे सबसे अच्छे मित्र जिनसे घने संबंध है वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आप एक फोन उठाकर बात नहीं कर सकते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि भैया ये क्या हो रहा है, इसको बंद करो। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें हो रहा है, हम आपके दोस्त हैं, आप कहते हो हम आपके दोस्त हैं। अभी ऑफ कोर्स ट्रंप ने अभी कहा है, मैंने अभी सुना भी है कि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर लूजर्स। ही जस्ट सेड दैट। अब मुझे नहीं मालूम कि हमारे प्रधानमंत्री तो लूजर है नहीं, वो तो हर इलेक्शन जीतते हैं, वो कैसे लूजर हो गए? कैसे जीतते हैं वो अलग बात है। शॉकिंग फॉर ट्रंप टू से दैट ऑल माय फ्रेंड्स आर लूजर्स बिकॉज आई फील बेटर। मुझे अच्छा लगता है कि बाकी लोग लूजर हैं, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। फिर उन्होंने दोहराया कि बिल्कुल मैंने सीज फायर करवाया था। Don't buy Russian oil. We don't buy Russian oil. We'll give you to buy at this price, discounted price. We'll buy at discounted price. By next year, January, there should be no imports. Yes, there will be no imports. And पिछले कई महीनों में इन्होंने ट्रंप साहब के साथ बात ही नहीं की। जो भी इंटरनेशनल गैदरिंग होती है वो जाते ही नहीं जहाँ ट्रंप जाएंगे। वो क्यों? वो पूछना चाहते हैं क्यों? आप ट्रंप साहब को फोन करके बताइए कि हमारा नुकसान आप क्यों कर रहे हो। अगर ज्यादा देर हॉर्मुज़ बंद रही तो यहां तो एक बहुत भारी आर्थिक संकट आ जाएगा। यू मस्ट कॉल अप President Trump and tell him, why are you hurting us the most? We are our dearest friends. And if Straits of Hormuz remains closed for so many days, we will be in economic distress, our economy, as it is. So this is a very serious issue which I want to raise before you. And the other serious issue is, in this democracy, every day should be the work of Team India. रोज के रोज टीम इंडिया को काम करना चाहिए। ये नहीं कि जब आप संकट पे आ जाओ तो फिर याद करो टीम इंडिया की बात। अब आपको मैं हिंदुस्तान की स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन बताता हूँ कि किस तरह से हमारा नुकसान होने जा रहा है। जहाँ LNG इंपोर्ट की सवाल है, जो हमारे इंडिया के नेचुरल गैस नीड्स हैं, वो कतर हमें 41 से 47% हमें सप्लाई करता है, हमारे नीड्स। और कतर पे हमला हो गया और उनका जो प्लांट था बंद हो गया। केवल 17% उसकी कमती प्रोडक्शन है, तो वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो नेचुरल गैस की बड़ी बारिश शॉर्टेज हो जाएगी, और है, आज के दिन भी है। तभी सरकार कह रही है कि LPG आप पाइप्ड गैस लो, क्योंकि उनको मालूम है कि नेचुरल गैस मिलने नहीं वाली। और उन्होंने कहा है कतर ने कि हमें 5-7 साल लगेंगे टू रिस्टोर दिस सप्लाई। ये आज की बात नहीं है। दूसरी बात, जो LPG सिलेंडर्स हैं उनके आज के दिन मार्केट में बहुत कमी है और बहुत ज़्यादा प्राइस हो गई है उनकी। अभी देखो, हाल ही में उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने फैसला किया कि जहाँ तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है तो वहाँ 10 रुपया कम एक्साइज ड्यूटी होगी। अच्छी बात है, चाहते हैं 10 रुपया कम हो। हम भी कोशिश करते थे कि जब हमारी सरकार, यूपीए की सरकार थी, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के साथ लोगों को राहत देते थे। लेकिन इनकी कंपनी, हमारे देश में तो जब प्राइस कम थी तो इन्होंने हमारे कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, उतना ही दाम देने दिया। मतलब कि जब मुश्किल थी तो भुगते कंज्यूमर।
अब जब प्राइस कम थी तो भुगते कंज्यूमर, और जब ज्यादा हो गई तो 10 रुपए पर लीटर की रहा। ऑफ कोर्स इसमें कंपनियों का तो नुकसान होगा ही होगा, कंपनियों में बहुत फायदा भी उठाया। फिर क्या डिस्ट्रप्शन होगी? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग कर दी, सल्फर की डिस्ट्रप्शन होगी, सिंथेटिक फाइबर्स में प्रॉब्लम आएगी, फर्टिलाइजर्स में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज 30 से 40% जो इनपुट्स है यार गैस लिंक्ड, वहां प्रॉब्लम आएगी, प्लास्टिक्स में प्रॉब्लम आएगी, फार्मास्यूटिकल्स में प्रॉब्लम आएगी, ल्यूब्रिकेंट्स में प्रॉब्लम आएगी, टूरिज्म कम हो जाएगा, एंटरटेनमेंट में प्रॉब्लम आएगी, डाइनिंग आउट पे आपको पैसे ज्यादा लगे।